کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن کی ہر آیت کا مفہوم کیا ہے؟ دین کا مرکز و محور کون ہے؟ علم کا دروازہ کہاں کھلتا ہے اور روح کو اطمینان کہاں سے ملتا ہے؟ اگر آپ نے ان سوالوں کا جواب تلاش کیا تو ہر راستہ، ہر نشان، ہر راز ایک ہی در پر لے جاتا ہے، مولا علی علیہ السلام کے در پر۔ جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق ہوا تو ساتھ ہی نور علی علیہ السلام بھی تخلیق ہوا، کیونکہ رسالت کو اگر ظاہری رہنمائی کرنی ہے تو ولایت کو باطنی رہبری کا فریضہ سونپا گیا۔ یہ دو نور دو الگ ہستیاں نہیں بلکہ ایک ہی حقیقت کے دو جلوے ہیں، ایک ظاہر میں مصطفیٰ ہے تو دوسرا باطن میں مرتضیٰ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ معمولی باتیں نہیں تھیں، یہ آنے والی امت کے لیے پیغام تھا کہ اگر تم قرآن کے ظاہری الفاظ سمجھ چکے ہو تو اب اس کے باطنی راز علی سے سیکھو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو یہ صرف تعلیمی رشتہ نہ تھا، یہ ایک روحانی دروازہ تھا۔ جس علی علیہ السلام نے کعبہ میں آنکھ کھولی، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں تربیت پائی، جس نے پہلا سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا کیا، اور جس نے ہر جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم، حکمت اور شجاعت کو ثابت کیا۔ کیا وہ علی علیہ السلام کوئی عام صحابی تھے؟ نہیں، وہ باب ولایت ہیں، وہ آفتاب فقر ہیں، وہ امام المتقین ہیں۔ تاریخ کے سینے میں بہت سے راز دفن ہیں، لیکن ایک راز سب پر عیاں ہے کہ جب بھی باطل سر اٹھاتا ہے تو علی علیہ السلام کا نام تلوار بن کر گرجتا ہے۔ جب بھی علم کی گلیوں میں گمراہی آتی ہے تو علی علیہ السلام کا نور راستہ دکھاتا ہے، اور جب کوئی قلندر، فقیر یا درویش فنا کی طلب میں نکلتا ہے تو وہ کسی کتاب کی طرف نہیں جاتا، وہ کسی منصب کی طرف نہیں دیکھتا، وہ فقط در علی پر جا بیٹھتا ہے اور کہتا ہے مولا تیرے سوا کچھ نہیں، بس تو ہے اور تیری ولایت ہے۔ اگر مولا علی علیہ السلام کو پہچان لیا تو سمجھو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا، اگر نبی کو پہچان لیا تو سمجھو رب کا قرب پا لیا۔ یہی ولایت ہے، یہی فقر ہے اور یہی راز کلندری ہے۔ عشق وہ نہیں جو زبان پر ہو، عشق وہ ہے جو ہڈیوں میں بولے، لہو میں گونجے اور جذبوں کی گہرائی میں علی علی کی صدائیں پیدا کرے۔ آج ہم ان خوش نصیبوں کی بات کر رہے ہیں جن کے دل صرف ایک مرکز کے گرد گھومتے تھے، حضرت سلمان فارسی، وہ عاشق جو تخت و تاج فارس کو ٹھکرا کر ریگزار مدینہ میں ولایت کی خوشبو تلاش کر رہا تھا۔ یہ وہی سلمان ہے جس نے نجومیوں سے سنا تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوگا، اور وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مرد خدا کا ہاتھ تھامیں گے جس کے بعد ہدایت کے دروازے کھلیں گے، اور سلمان نے وہ ہاتھ پہچان لیا، وہ ہاتھ علی علیہ السلام کا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلمان میری اہل بیت کا ایک فرد ہے۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں، یہ مہر تصدیق ہے کہ سلمان روحانی طور پر بھی اسی خانوادے سے ہیں۔ جب علی علیہ السلام نے فرمایا سلمان جو میرا ہے وہ تیرا ہے، سلمان نے جواب دیا مولا تب میرا کچھ رہا ہی نہیں، سب کچھ آپ کا ہے۔ حضرت میثم تمار کی بات کریں تو ان کی کھجوروں کی دکان تھی، مگر ان کا دل معرفت کی کھجوروں کا باغ تھا۔ وہ روز در علی پر حاضر ہوتے، کبھی پانی بھرتے، کبھی جوتی سیدھی کرتے، کبھی فقط دروازے کو دیکھتے رہتے۔ لوگوں نے کہا تم ہر روز یہاں کیوں آتے ہو؟ کہا کیونکہ میں علی کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور ان کی ایک جھلک میرے کل دن کو عبادت بنا دیتی ہے۔ علی علیہ السلام نے فرمایا میثم ایک دن تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی مگر تم علی علی کرتے رہو گے۔ اور پھر وہ دن آیا، میثم درخت سے بندھے تھے، زبان کاٹی گئی مگر آنکھوں سے آنسو نہیں، عشق ٹپک رہا تھا۔ اب ذکر کرتے ہیں حضرت قمبر کا۔ قمبر ایک غلام نہیں، وہ تو عشق کی سلطنت کے وزیر تھے۔ جب مولا علی علیہ السلام کو سفر درپیش ہوتا تو قمبر پہلے نکلتے، راستے صاف کرتے، قدموں کے نیچے کی مٹی ہٹاتے اور کہتے مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے قدم میری سانسوں پر پڑیں۔ قمبر کا عشق کوئی رسم نہیں تھا، وہ تو روح کا خمیر بن چکا تھا۔ کہتے تھے اگر علی کہیں دوزخ میں بھی کھڑے ہوں تو میں جنت کو چھوڑ کر ان کے قدموں میں جانا پسند کروں گا۔ ایک دن قمبر نے کہا مولا آپ کو دیکھتا ہوں تو رب کو دیکھ لیتا ہوں۔ علی مسکرا دیے اور قمبر کی آنکھوں میں نور ولایت ٹپکنے لگا۔ تینوں عاشقوں کا راز ایک تھا۔ سلمان نے علی علیہ السلام کو پہچان کر اہل بیت میں شمولیت پائی، میثم نے علی علیہ السلام کی محبت میں اپنی زبان کٹوا دی، قمبر نے علی علیہ السلام کے قدموں میں خود کو مٹا دیا،
ये सब हमें एक ही सबक देते हैं। इश्क़ अली अलैहिस्सलाम सिर्फ अक़ीदत नहीं, फना है। मोहब्बत नहीं, इबादत है। इबादत नहीं, निजात है। अगर आप अली से इश्क नहीं करते तो आपने इश्क को कभी जाना ही नहीं। अगर आप सलमान, मीसम और कंबर जैसे नहीं हो सकते तो कम अज कम इश्क की दहलीज पर दस्तक देना सीख लें। अब विलायत अली अलैहिस्सलाम के चिराग से आपके दिल का एक ऐसा हिस्सा रोशन होने जा रहा है जो ना सिर्फ अक्लों को झंझोड़ देगा बल्कि दिलों में आग लगा देगा। ये वीडियो का दूसरा हिस्सा नहीं, ये वो मुकाम है जहाँ जमीन थरथरा गई, आसमान झुक गया, फरिश्ते सजदे में गिर गए, क्योंकि रब ने ऐलान फरमा दिया, आज दीन मुकम्मल हो गया। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह नाज से, प्यार से, मोहब्बत से पुकारा। कभी यासीन कह के बुलाया, कभी वद्दुहा कह के बुलाया, हर जगह नाज और प्यार से मुखातिब किया। लेकिन जब बात आई मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत के ऐलान की तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने ये बात ना पहुंचाई तो गोया आपने कुछ भी नहीं किया। ये फकत एक हुक्म नहीं था, एक रब्बानी तंबीह थी कि विलायत अली अलैहिस्सलाम के बगैर 23 साला नबूवत की मेहनत भी अधूरी है। और फिर वो दिन आया जब मैदान गदीर सजा, आसमान के नीचे सूरज जल रहा था, जमीन हज्जाज इकराम के कदमों से गूंज रही थी, काफिला मुकम्मल हज अदा कर चुका था, सब मदीना वापस जा रहे थे। लेकिन आसमान से आवाज आई, ठहरो, अभी तुम्हारा सफर मुकम्मल नहीं हुआ। पैगाम नाजिल हुआ, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान कर दें, वरना आपकी रिसालत, आपका मिशन, सब कुछ अधूरा रह जाएगा। ये बात मेरी, आपकी या किसी दूसरे तीसरे की नहीं है। ये कुरान मजीद की आयात का मफहूम है जो अल्लाह ताला खुद बयान फरमा रहा है। ये ऐलान था नूर के वारिस का, ये ऐलान था हक की अलामत का, ये ऐलान था नबूवत के तसलसल का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली अलैहिस्सलाम का हाथ बुलंद किया और फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली भी मौला है। जैसे ही ये कलमात अदा हुए, आसमान लरज उठा, अर्श झूम उठा और वही नाजिल हुई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। और ये आयत कुरान करीम की आखिरी आयत थी। कुरान करीम भी मुकम्मल हो गया और दीन भी मुकम्मल हो गया और रिसालत भी मुकम्मल हो गई। सोचें, गौर करें, नमाज नाजिल हो चुकी, रोजे फर्ज हो चुके, ज़कात, जिहाद, हज, सब कुछ मुकम्मल, फिर दीन कब मुकम्मल हुआ? अली के ऐलान पर। तो फिर सोचें, अली कौन है? अली वो जिनके बगैर रिसालत का ताज मुकम्मल नहीं होता। ये वो अली हैं जो काबे के अंदर पैदा हुए, जिन्होंने पहली आवाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों से सुनी, जिन्होंने पहली नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदा की, जिन्होंने हर जंग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साए की तरह साथ दिया, जिनके दरवाजे पर जिब्रील अमीन भी इजाजत लेकर आते थे। ये वो अली हैं जिनके बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। और जब रब का लहजा सख्त हो तो अहले ईमान कांप जाते हैं, अल्लाह का लहजा सख्त हुआ तो नबी भी लरस गए। क्यों? क्योंकि ऐलान आसान ना था। मुनाफिकीन की साजिशें, कबीलों की दुश्मनियां, इक्तदार के ख्वाब, सब के मुंह पर तमाचा था ये ऐलान। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली अलैहिस्सलाम का नाम बुलंद करके अपनी रिसालत का ताज मुकम्मल किया और अली अलैहिस्सलाम ने अपनी विलायत का परचम बुलंद करके दीन का कमाल साबित कर दिया। जिस जुबान पर अली का नाम ना हो वो जुबान अल्लाह के नूर से खाली है। जिस दिल में अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ना हो वो दिल ईमान के काबिल नहीं। और जिस कौम के खतीब, जाकिर, मुकर्रर अली की विलायत को छोड़ दें वो उम्मत राह हिदायत से भटक चुकी है। ये ऐलान था चिरागे विलायत का जो कयामत तक जलता रहेगा, जो हर कलंदर, हर दरवेश, हर आशिक के दिल में अली अलैहिस्सलाम का नाम लिखेगा। और अगर मेरी जुबान से निकलता है या अली तो समझ लें ये सिर्फ सदा नहीं, ये उस विलायत का अक्स है जिसके बगैर दीन मुकम्मल ही नहीं होता। क्या कभी आपने देखा है किसी को इतना महव, इतना दीवाना कि सब कुछ छोड़कर एक दर पर बेकरार हो जाए? ये कलंदर है जो अपने दिल की आवाज पर चलता है और अली अलैहिस्सलाम के इश्क में मजनू हो जाता है। कलंदर वो नहीं जो दुनिया की चीजों के पीछे दौड़ता है, ना ये कोई ऐसा शख्स है जो दुनिया की शोहरत की खातिर जिंदा रहता है, बल्कि कलंदर वो होता है जो हर चीज को एक तरफ रख कर सिर्फ अली अलैहिस्सलाम के दर की तरफ आ जाता है। अली अलैहिस्सलाम का दर उसके लिए सब कुछ होता है। ये वो जगह
है जहां दुनिया का सारा जाहो जलाल चंद लम्हों में मिट्टी बन जाता है और सिर्फ अली अलैहिस्सलाम की विलायत का नूर रह जाता है। कलंदर के दिल में जब भी अली अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है वो अपनी आंखें छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी आंखों में अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का सैलाब उतर आता है और वो इतना बहक जाता है कि उसे खुद का होश नहीं रहता। कलंदर वो होता है जो अली का नाम लेते हुए अपनी सारी दुनिया को भुला देता है। उसकी जुबान पर या अली अलैहिस्सलाम का जिक्र उसके दिल में अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का एक दरिया बनाता है जिसे वो अपनी जिंदगी के हर लम्हे में महसूस करता है, और उसकी तुग़यानी और उसकी रवानी से वो नज़ारे पाता है कि सुबहान अल्लाह। वो जानता है कि अगर उसकी जिंदगी में कोई चीज है तो वो अली अलैहिस्सलाम का इश्क है, और अगर उसकी जिंदगी में अली अलैहिस्सलाम का जिक्र हट जाए तो गोया वो जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा है। कलंदर का राज ये नहीं कि वो क्या करता है, बल्कि उसका राज ये है कि वो किससे मोहब्बत करता है। अली की मोहब्बत में उसका दिल हमेशा बेचैन रहता है। वो हर वक्त अली का जिक्र करता है, चाहे वो दिन हो या रात। वो बस या अली की लज्जत में गर्क होता रहता है। अगर आप कभी कलंदर को देखें तो वो अली अलैहिस्सलाम के दर पर सजदा करता दिखेगा, जहां वो अपनी सारी मुश्किलात और दुख भुलाकर सिर्फ अली अलैहिस्सलाम के सामने गिरकर अपनी आजिज़ी जाहिर करता है। कलंदर का इश्क इतना पुरअसर होता है कि वो अली अलैहिस्सलाम के कदमों में आराम पाता है। वो अली अलैहिस्सलाम को अपना सब कुछ मानता है, और जब वो अली अलैहिस्सलाम के दर से बाहर निकलता है तो उसकी हर हरकत में अली अलैहिस्सलाम का नूर समाया होता है। कलंदर जब अली का नाम लेता है तो अली का जलाल उसकी रूह में उतर आता है। उसके दिल में एक आग लग जाती है जो अली अलैहिस्सलाम के नूर से मजीद तेज हो जाती है। कलंदर के जिस्म से अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की तपिश महसूस होती है। वो जब अली का जिक्र करता है तो ऐसा लगता है कि सारे जहान का सुकून उसके अल्फाज में जमा हो गया हो। कलंदर का असूल सादा है, अली का नाम है तो मैं हूँ। जब वो अली का जिक्र करता है तो उसका दिल, उसका जिस्म, उसकी रूह सब अली के दर की तरफ लपकते हैं। वो हर लम्हा, हर कदम अली अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद रहना चाहता है, क्योंकि उसे ये यकीन है कि अली अलैहिस्सलाम की विलायत में ही मेरी जिंदगी है। अगर आप भी कलंदर की आंखों में अली का नूर देखना चाहते हैं तो बस या अली अलैहिस्सलाम कहकर उसके दिल की गहराइयों में जाएं और आपको पता चलेगा कि कलंदर की मोहब्बत में अली अलैहिस्सलाम का जलाल कितनी बड़ी हकीकत है। कलंदर की जिंदगी सिर्फ अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में डूबी हुई है, और वो जानता है कि उसकी हर हरकत में अली का नक्श है। अली का जिक्र, अली की विलायत और कलंदर का इश्क, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो दुनिया के हर किसी दूसरे जज्बे से बढ़कर हैं। वो इश्क है जो जिंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ अली अलैहिस्सलाम के नाम पर उठता और गिरता है। नाजरीन, अगर आप दिल की गहराइयों में अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को महसूस करना चाहते हैं तो ये कलंदर की कहानी आपके दिल तक पहुंच जाएगी, और आपको पता चलेगा कि ये जो अली का इश्क है ये एक ऐसा जज्बा है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। मैं हूँ एजाज काज़मी, कलंदर के दर का गुलाम। जब से मैंने कलंदर के दर की रोशनी पाई है मेरी जिंदगी बदल गई है। मैंने अली अलैहिस्सलाम के इश्क में अपना दिल और जिंदगी डुबो दी है, और जब मैं दास्तान उर्दू के जरिए लोगों तक ये पैगाम पहुंचाता हूं तो मुझे एक अजीब सुकून मिलता है। जब लोग मुझे व्हाट्सएप, ईमेल्स और पैगामात में बताते हैं कि उनके मसाइल हल हो गए हैं और वो अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में अपनी गुमशुदा राहें पा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये कलंदर का करम है जो मुझसे मौला की ड्यूटी ले रहे हैं। मैं इसमें सिर्फ एक वसीला हूँ जो अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। मेरे लिए ये सब कुछ एक बरकत है। जब लोग मेरी कोई वीडियो देखकर मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का नूर पाते हैं तो मैं समझता हूँ कि मौला की रज़ा के रास्ते पर चल रहा हूँ। कलंदर के दर्द का शुक्रिया कि मुझे इस सफ़र में शामिल कर रहा है। जब तक मैं अली अलैहिस्सलाम के इश्क में डूबा हूँ मेरी ज़िंदगी का मकसद साफ है, अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और विलायत का पैगाम फैलाना। ये मेरी रूहानी ड्यूटी है और मैं इसे अपना शरफ समझता हूँ कि मैं कलंदर के दर की बरकत से अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को दुनिया तक पहुँचा रहा हूँ।